નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો ઉવજ્જાયાણં નમો લોએ સવ્વસાહુણં એસો પંચણમુક્કારો સવ્વપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્વેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો અરિહંતાણં મહાદેવ્યા કુક્ષિરત્નમ શબ્દજીતર્વાત્મજં રાજચંદ્રમહં વંદે તત્વલોચનદાયકમ. જે સ્વરૂપ સમજા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત. પરાત્પર ગુરુવે નમઃ. પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ. પરમ ગુરુવે નમઃ. સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત ગીત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ માં પાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ઓ જય સદ્ગુરુ વંદન. તત્વચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ સત્શાસ્ત્ર ગાથા નંબર 87. શિષ્યની પાંચમી શંકા. એક પ્રશ્ન છે, થોડો સમાધાન કર. કાલના સંદર્ભમાં છે. હું સમજી ગયો તમારી વાત. કોઈ કારણસર આપના ઘરમાં એક બંદૂક આવી. બંદૂક એ કોઈક ભેટ આપી અથવા જે પ્રકારથી હોય, પણ સુરક્ષા માટે ઈડરના દરબાર ભેટ આપી. તો આપણે ઘરમાં એવા બંદૂક વગેરે રાખી શકીએ કે નહીં રાખી શકીએ, અને રાખીએ તો આપણને દોષ લાગે કે નહીં લાગે, તો કાલે ઘણું બધું એનું સમાધાન થઈ ગયું છે. ઇન શોર્ટ કે વિરોધી હિંસાનો દોષ લાગે, સંકલ્પી હિંસાનો દોષ નહીં લાગે. કેમ કે તમે આત્મરક્ષા કરવા માટે એ લીધી છે.
અને આત્મરક્ષા વિરોધી હિંસા વગર નહીં થાય. સમજમાં આવે છે ને? વસ્તુ 4 પ્રકારની હિંસા છે: આરંભી, ઉદ્યોગી, વિરોધી, સંકલ્પી. તો આપણે ઘરમાં કંઈક રાખી મૂક્યું છે, એનો અર્થ એમ છે કે શ્રાવક ગ્રહસ્થ હોય, પોતાના ઘરની રક્ષા માટે, દેશની સુરક્ષા માટે તે જો પ્રકારથી શસ્ત્ર અસ્ત્ર રાખે, તો એને શસ્ત્ર અસ્ત્ર રાખવાનો જે દોષ છે એ વિરોધી હિંસા સુધીનો છે ને એ અલ્પ છે, અત્યંત અલ્પ છે. બાકી એને સંકલ્પી હિંસાનો કોઈ દોષ લાગતો નથી. હા 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 બંદૂક શા માટે રાખી છે? હા, એટલે જયંતિભાઈને ઘરે બંદૂક આવી, ઈડરના મહારાજે એમને ભેટ કરી. હા હા, તો ચલો આજે અત્યારે ઘણો ઓછો સમય છે, નેક્સ્ટ હું ખાલી સમજાવી દઉં એમને કે એમને ઘરમાં આપણે સંદર્ભ બીજો ચાલે છે. એટલે કે બંદૂક આવી, આપણે તો બધા માટે છે આ ક્વેશ્ચન. તો આપણે ઘરમાં કોઈ ભેટ આપી, તો ભાઈ મોટા મોટા મહાત્મા આવ્યા, શાંતિસાગરજી મહારાજ આવ્યા, ત્યારે પણ એવો પ્રશ્ન એમ કે ભાઈ શા માટે રાખી છે? પછી પેલા વિનોબા ભાવે એમને ઘરે આવ્યા, તો પછી શા માટે રાખી છે? સાહેબજી એમને ઘરે ગયા, તો પછી શા માટે રાખી છે? તો રાખવાનું કે કોઈ ભેટ આપી એટલે આપણે રાખી, અને શોભા છે ઘરની. ઘણીવાર ગ્રહસ્થ અવસ્થામાં આવી બધી વૃત્તિઓ હોય તો એક પ્રકારની શોભા છે, કોઈને મારવાનો ઉદ્દેશ નથી, પણ આત્મરક્ષા માટે જો શ્રાવક રાખતા હોય તો મોટો દોષ નથી. એ ગ્રહસ્થનું કર્તવ્ય છે કે આપણે પોતાની રક્ષા કરવા માટે કંઈક ને કંઈક વસ્તુ આપણે હોવી જોઈએ. પણ એમાં દોષ કેટલો છે? વિરોધી હિંસાનો દોષ નથી, વિરોધી હિંસાના અભિપ્રાયનો દોષ છે. વિરોધી હિંસાનો દોષ તો ક્યારે લાગે? કે જ્યારે કોઈ આપણે ઉપર આક્રમણ કરે અને આપણે એવા ભાવથી એને પ્રત્યાક્રમણ કરીએ, તો ત્યાં ભાવ બન્યા, એ ભાવ બન્યા ત્યારે હું દોષ લાગે. પણ અહીંયા તો અત્યારે ભાવે નથી બન્યા, પણ એવા ભાવનો આશ્રવ ચાલે છે. રાખી મૂક્યું છે ને, એટલે અભિપ્રાયમાં એ વસ્તુ છે કે કોઈ કદાચ કોઈ આક્રમણ કરે તો આપણે એના માટે કંઈક કરીશું, એવા પ્રકારનો અભિપ્રાય છે. એ અભિપ્રાયનો જેટલો દોષ લાગે એટલો દોષ લાગે, બાકી કોઈ વધારે દોષ લાગે નહીં. હા, અત્યારે નથી, એમને આપી દીધી, પોલીસ થાણામાં જમા કરાવી દીધી એમને. તો આ તો સામાન્ય એમને તો ઘણો એમને ખબર પડી ગયો કે વર્ષો સુધી એનો કોઈ ઉપયોગ થતો નથી. તો એવો ઉપયોગ નથી થતો, તો એવો શા માટે સાધન રાખવા કે જેનો ઉપયોગ જ નથી થતો? અને જ્યારે થશે ત્યારે એનો ઉપયોગ હિંસામાં જ થશે. એટલે એવો સાધન શા માટે રાખીએ? એમ કરીને વિવેકથી એમને તો. પણ કોઈને ઘરે હોય, શ્રાવકોના ઘરે, તો આપણે એમને સમજી લેવો કે આપણા હિંસક છે. રાજાઓ મહારાજાઓ પહેલાં બધા સેનાપતિઓ બધા હતા જ તે, ને શ્રાવક હોય પાછા, ને એમને ઘરે બધા અસ્ત્ર શસ્ત્રો રહે. તો જ્યાં સુધી શ્રાવક અવસ્થામાં છે ત્યાં સુધી એમને વિરોધી હિંસાનો ત્યાગ નથી. અને પંચમ ગુણસ્થાન સુધી આ વિરોધી હિંસાનો દોષ લાગે અને પછી આગળ લાગતો નથી. આ એક સિદ્ધાંતના હિસાબથી છે. હા, હજી પ્રશ્ન છે આ તો ફળનો. હા, એટલે ખાઈ ગયો. હું તમારી વાત સમજી ગયો. એમ કહેવા માંગે છે કોઈ વસ્તુ રાખીએ ને તો ક્યારેક આવેશમાં આવીને એનો ઉપયોગ થઈ જાય, એટલે દુરુપયોગ થઈ જાય. કોઈકને ઘરમાં ઉધઈની દવા હતી, એ કોઈ ગુસ્સો આવે તો ઉધઈની દવા ખાઈને મરી ગયો. તો આવી વસ્તુઓ ટૂંકમાં નહીં રાખવી. જે ઘાતક વસ્તુઓ હોય એ આપણે ઘરમાં નહીં રાખવી. પણ કોઈકને ઘરે હોય તો એનાથી આપણે એમને સમજી લેવું
કે આ બડા હિંસક વ્યક્તિ છે એવું સમજી લેવું નહીં. જોતા જ એવું નહીં સમજી લેવું કે કયા ઇન્ટેન્શનથી એ શા માટે છે, એ બધો વિચાર કરવાનો છે. રામ ભગવાન ધનુષ બાણ લઈને ફરતા હતા, એનો મતલબ રામ ભગવાન હિંસક નહોતા. સમજમાં આવી વસ્તુ? ધનુષ બાણ લઈને ફરવાનું નામ હિંસક નથી, હિંસક વૃત્તિ છે, અભિપ્રાય છે. જો એમને એવું કોઈ પરિસ્થિતિ નહીં મળતી તો એ ધનુષ બાણ ઉપાડતા જ નહીં ક્યારે, અને બીજાને રક્ષા માટે જ ઉપાડી એમને. એટલે ઇન્ટેન્શન મુખ્ય વસ્તુ છે. પણ આપણે તો ટૂંકમાં, હવે બંદૂકોના જમાના ગયા, બધા જમાના ગયા, આપણે તો કંઈ વસ્તુ રાખવી. શાક સુધારવાનો ચાકુ પર્યાપ્ત છે, એ શાક સુધારવા માટે. સમય આવે તો એનો ઉપયોગ કરવાનો એવું નથી બીજા. ચલો આગળ પાંચમી શંકા કે છે. પહેલી શંકા શું હતી જીવની? આત્મા જીવી કોઈ વસ્તુ નથી. એટલે સૌથી પહેલા સમજાયું કે આત્મા છે. પછી બીજી શંકા શું થઈ એમને? भाई आत्मा है तो सही मान लिया, परंतु वो हमेशा रहता नहीं है, नित्य नहीं रहता है, शरीर के साथ वो भी चला जाता है. तो एनो पण समाधान करो कि भाई आत्मा हमेशा रहता है. तीसरी शंका, भले आत्मा है, नित्य भी है, पर वो कुछ करता नहीं है, ऐसी शंका की. तो उसका भी समाधान किया कि नहीं, वो करता भी है, अपने भाव वो करता है. और चौथी शंका क्या हुई? आत्मा करता है परंतु फल का भोगता नहीं है. तो उसको कहा कि नहीं, फल का भी भोगता है. यहां तक शिष्य संतुष्ट हो गया. अब आगे कहता है कि जीवनो ते कर्मथी मोक्ष નથી એમ शिष्य कहे છે कि वो कर्म करता है और कर्म को भोगता है, परंतु करता भोगता रहता है, बस उससे उसका उस कर्म से कभी मुक्ति होगी नहीं. किस प्रकार से नहीं होगी? तो उसका दलील देता, तर्क देता शिष्य. 87 सौ साथे. करता भोगता जीव हो पण तेनो नहीं मोक्ष. वीत्यो काल अनंत पण वर्तमान छे दोष. वीत्यो काल अनंत पण वर्तमान छे दोष. करता भोगता जीव हो पण तेनो नहीं मोक्ष. जीव करता हो, ठीक है, मान लिया. भोगता है, वो भी हमने मान लिया, पण तेनो नहीं मोक्ष. उसका मोक्ष नहीं है. क्यों नहीं है? वीत्यो काल अनंत पण वर्तमान छे दोष. अनंत काल से ये जीव करता भोगता है और वर्तमान में भी ये करता भोगता ही है. तो अनंत काल में तो इसकी मुक्ति हुई नहीं, तो अब आगे क्या होगी उसकी मुक्ति? अपन कहते हैं ना, आटलो मोटो થઈ ગયો છે, ઘરડો થવા હજી સુધી સુધર્યો નહીં, तो ક્યારે सुधरे? इतनी उम्र होने के बाद भी हम सुधरे नहीं, तो कब सुधरेगा? इसका मतलब इसकी कोई संभावना नहीं. क्योंकि वास्तव में शुभाशुभ कर्म करते करते हमारे कितना साल बीत गए हैं? साल नहीं बीते हैं, अनंत काल बीते हैं, अनंत सागर बीते हैं, अनंत परावर्तन बीते हैं. सागर की भी क्या बात करते. अब इतने सालों से तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या होगा? इस बात को मानना बड़ा कठिन है कि जीव अनादि से अज्ञानी है. हर किसी को इस बात पे विश्वास होता नहीं. पहले कर्म है कि पहले जीव है? जीव का भाव क्या है? अच्छा, पहले राग किया इसलिए कर्म बंधे, कि कर्म का उदय इसलिए राग हुआ? इस बात को समझना बड़ा कठिन है. क्योंकि अनादि शब्द है, उस अनादि शब्द को समझना ही बहुत कठिन है. मतलब उसकी श्रद्धा होना. अनादि का अर्थ है कि इसका कोई प्रारंभ नहीं.
पहले से ही ऐसा है, अनादि से। तो ना ऐसे कैसे हो सकता? पहली पर्याय तो कोई हुई गई। अपन सर्वज्ञ भगवान को पूछें अभी कि सबसे पहले मुझे कर्मबंध कैसे हुआ, वो मुझे बताओ। क्या बताएंगे? क्या बताएंगे सर्वज्ञ भगवान कि सबसे पहले मुझे कर्मबंध कैसे हुआ, मैंने सबसे पहले कौन सा अज्ञान का भाव किया था, वो मुझे बताओ। क्या बताएंगे? कि सबसे पहला कुछ है ही नहीं क्योंकि जहां कोई और छोर नहीं है वहां पहले कैसे हो सकता है? शुरुआत नहीं है, उसको आदि नहीं है, उसका कैसे आदि करो आप? बड़ा कठिन काम समझना। नहीं, भगवान सर्वज्ञ देव अनंत काल पहले की बात भी जानते हैं। और मैं कब का हूं? अनंत काल पहले का हूं। भगवान तो अनंत काल पहले की बात जानते हैं और मैं अनंत काल पहले का हूं, तो वो मेरी सब पर्याय क्यों नहीं जानते? अच्छा ये बताओ, ये थोड़ा सूक्ष्म प्रश्न पूछ लिया हो कि भगवान जीव की सब पर्याय जानते हैं? थोड़ा सोच के जवाब देना हो। ये प्रश्न, ये उत्तर इतना साधारण नहीं है जितना हम उसको समझ रहे हैं। अनंत काल को भगवान कैसे जानते होंगे? अनंत को कैसे जाना जाए ये बताओ पहली बात तो। हाँ, तो ऐसे एक एक करके पर्याय जानते होंगे भगवान। और उन सब अनंत काल की पर्यायों को जानते होंगे। अब मैंने ये प्रश्न है ना आप लोगों के ऊपर छोड़ा है, उसके ऊपर बहुत गहन अध्ययन मनन चिंतन आदि करना कि सर्वज्ञ भगवान किस प्रकार से इस तीनों लोकों को जानते हैं, अनंत काल को किस प्रकार से जानते हैं, अनादि को किस प्रकार से जानते हैं, अनंत को किस प्रकार से जानते हैं। इस प्रकार इसलिए तो मैंने प्रश्न किया कि हम कहते हैं कि सब जानते हैं। तो मैंने तो प्रश्न ये पूछा था कि भगवान सब जानते हैं क्या? अभी फिर से, अभी सोचना, बहुत जल्दी मत करो उत्तर देने की, इसमें बहुत सारे रहस्य। ये अनेकांतवाद है। यहां क्या है? अनेकांतवाद है, यहां कुछ भी एकांत नहीं है। तो वो किस प्रकार से जानते हैं? भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ है इसलिए सब जानते हैं, नहीं जानते ऐसा नहीं है, परंतु वो सब जानना किस प्रकार से हो रहा है उसके ऊपर विचार करना। तो यहां कह रहे हैं कि વીત્યો કાળ અનંત પણ વર્તમાન છે दोष। अनंत काल बीत गया परंतु वर्तमान में भी दोष ही है। आगे और उसका समाधान और करते हैं, दोनों गाथा ले लेते हैं अपन। 88 नंबर। अब दूसरी दलील देता है। पहली दलील क्या दी कि ये अनंत काल बीत गया है शुभाशुभ कर्म को भोगते हुए करते हुए, और इसलिए अभी भी उसका कुछ ठिकाना पड़ा नहीं है, तो हमको नहीं लगता कि आगे भी पड़ेगा, इसलिए इस जीव का मोक्ष नहीं है। अब उसकी दूसरी दलील बहुत जबरदस्त देते हैं सब साथी। शुभ करे फल भोगवे देवादि गतिमान, अशुभ करे नरकादि फल कर्म रही तन क्या।
अशुभ करे नरकादि फल, कर्म रहित न क्या। शुभ करे फल भोगवे, देवादि गति माय। शुभ कर्म करता है तो देव आदि गति में जाकर के, देव आदि में क्या क्या लेना, तो जो शुभ गतियां हैं वो लेना। तो देव गति शुभ है, और कौन सी गति शुभ है, मनुष्य गति। शुभ गतियां कितनी है, केवल 2 है, तो उन दोनों में अपना फल भोगता है। अशुभ करे नरकादि फल, कर्म रहित ना क्या है। और अशुभ कर्म करता है तो नरक आदि में उसका फल भोगता है। आदि में क्या लेना, और नरक और उसके आगे तिर्यंच ऐसा लगा देना। कर्म रहित ना क्या है, कर्म रहित कहीं होते नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा। मैं अच्छा कर्म करूंगा, मेरे हमेशा भाव शुभाशुभ चलते रहते हैं। अच्छा भाव करता हूं, शुभ कर्म का बंद होता है, फिर उसका उदय आता है, तो कुछ तो उदय इसी भाव में मिल जाता है उनका, कुछ बाकी रहता है तो फिर देव गति में अथवा मनुष्य गति में जाते हैं, वहां भोगते हैं। फिर वहां से अपने कर्म के अनुसार फिर दूसरी गति बदलते हैं। अगर वहां पाप बांध लिया तो कुछ पाप का उदय तो उसी गति में आ जाता है, ज्यादा बांध लिया तो उस गति में नहीं मिलता है, तो फिर और ज्यादा दुर्गति में जाता है और तिर्यंच और नरक में जाता है। और इस प्रकार से वहां फिर से नया पाप अथवा पुण्य बांधता है, और ऐसा करते 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 निकल जाता है। अब बताओ मुक्त होने का कहां मार्ग है, क्योंकि शुभ और अशुभ भाव तो कभी अटकते नहीं है, लगातार एक धारा प्रवाह से चल रहा है। मन कभी एक क्षण के लिए भी रुकता है रुकता ही नहीं है मन। अब उसको कैसे रोकना, कैसे जीतना। अब वो रुके तो शुभ और शुभ अटके तो बात चले, पर बात ऐसी होती नहीं है कभी। इसलिए हम तो ऐसा कहते हैं कि ये आप मोक्ष नाम की कोई वस्तु कहते हो, मुक्त हो सकते हैं, ऐसा कोई मोक्ष वोक्ष होता नहीं है। हमको तो इसी में मौज करने दो, 4 गतियों में घूमने दो। क्योंकि मैं तो मन को जितना रोकने का प्रयत्न करता हूं, इतना इतना ज्यादा भागता है ना। हम सबको क्या करना पता है, निर्विचार होना है। सबको होना है कि नहीं होना है, पर निर्विचार होने की वासना रखने वाला का भी निर्विचार होता है कि नहीं होता। उल्टा एक विचार जाता है, दूसरा आता है, जाता है, दूसरा आता है, फिर जाता है, दूसरा आता है, फिर जाता है, दूसरा आता है। क्या किया जाए। और इस अनुभव के आधार पर शिष्य ने ऐसा कहा कि मोक्ष नहीं। मोक्ष नहीं है तो फिर क्या करेंगे। 4 पद आगे के जाने, उसका क्या अर्थ है, कुछ अर्थ नहीं। जो मोक्ष नहीं मानता है वो सीधी बात है कि वो चार्वाक होगा। पहली शंका जिसने करी थी ना, वो ये चार्वाकी सब कर रहा है। क्योंकि मोक्ष नहीं मानता है इसलिए कुछ भी करो, कुछ भी करो और भोगते रहो, मिलेगा फल तो देखा जाएगा जब आएगा उसमें। तो कर्तापना भी रहता है, भोक्तापना भी रहता है, सब रहता है। और ज्यादा और बढ़ता है, क्योंकि आत्मा की नित्यता भी जान ली इसने तो, कि मैं तो हमेशा रहने वाला हूं, इसलिए अभी करेंगे तो कहीं तो मिलेगा। ऐसा करके उस भोग की इच्छा और अधिक बलवती हो जाती है। इससे तो यहां कर्म करेंगे कहीं तो मिलेगा अपने को, और ज्यादा आशावान तृष्णावान जीव हो जाता है इस बात को मानने से। जो मोक्ष नहीं मानता है उसकी बात कर, तो उसका समाधान करते हैं। समाधान सद्गुरु उवाच। તે કર્મથી જીવનો મોક્ષ થઈ શકે છે એમ સદગુરુ સમાધાન કરે છે। उस कर्म से सौ साथी
जेम शुभाशुभ कर्म पद जाण्या सफल प्रमाण, तेम निवृत्ति सफलता माटे मोक्ष सुजान, तेम निवृत्ति सफलता माटे मोक्ष सुजान। जेम शुभाशुभ कर्म पद जाण्या सफल प्रमाण, जिस प्रकार से शुभाशुभ कर्म पद, जो भी शुभाशुभ कर्म करते हैं वो सफल मतलब फल सहित जाने, प्रमाणित किए कि नहीं किए पहले, कि जो करोगे उसका फल मिलेगा। इसका मतलब कर्म है वो फल सहित है, कोई भी कर्म अफल नहीं है। तो जिस प्रकार से कर्म फल सहित है उसी प्रकार से कहते हैं तेम निवृत्ति सफलता माटे मोक्ष सुजान। तो जैसे शुभाशुभ कर्म फल सहित है उसी प्रकार से उस शुभाशुभ से जो निवृत्ति है वो निवृत्ति भी सफल है, अपने फल सहित है वो। शुभाशुभ का नाम प्रवृत्ति दिया और शुभाशुभ से अटकने का नाम यहां निवृत्ति दिया। तो जैसे प्रवृत्ति फल सहित है उसी प्रकार निवृत्ति भी फल सहित है। समझ में आ रहा है वस्तु? प्रवृत्ति का फल प्रवृत्ति है, बंध है, और निवृत्ति का फल निवृत्ति है, मुक्ति है। यहां कहना है साचार्य, हम कुछ भी प्रवृत्ति करेंगे, प्रवृत्ति करेंगे का मतलब क्या? हाथ पैर हिलाना का नाम प्रवृत्ति नहीं है। शुभाशुभ भाव करना इसका नाम प्रवृत्ति है। तो हम कुछ भी प्रवृत्ति करेंगे तो उसके कर्म बंधेंगे, तो वो सफल हुआ कि नहीं हुआ? फल सहित है। और अगर हम उससे निवृत्त होंगे तो वो कर्म कम होंगे कि नहीं होंगे? तेम निवृत्ति सफलता माटे मोक्ष सुजान। जिसको हम कर सकते हैं उसको हम रोक भी सकते हैं। आत्मा में ऐसी शक्ति है कि जिसको हम कर सकते हैं इसको हम रोक भी सकते हैं, जिसको हम नहीं कर सकते उसको हम नहीं रोक सकते। पर जिसको हम कर सकते हैं उसको हम रोक सकते हैं। तो हम क्रोधादि कषाय कर सकते हैं, इसका अर्थ उसको रोक भी सकते हैं। दोनों प्रकार की शक्तियां आत्मा की अनंत शक्तियां में एक शक्ति कर्तृत्व शक्ति भी है, कर्म शक्ति, और एक शक्ति अकर्तृत्व शक्ति भी है, अकर्मत्व शक्ति। वो 47 शक्तियां दी है ना समय सार में, उसमें ये दोनों है, कर्तृत्व शक्ति भी है और अकर्तृत्व शक्ति भी है। पर की अपेक्षा से तो ये कुछ नहीं कर सकता, स्व की अपेक्षा से ये सब कुछ कर सकता है। स्व में भी स्वतंत्र है दोनों प्रकार से, ये विभाव भी कर सकता है और ये स्वभाव भी कर सकता है। ये क्रोध कर सकता है, इसका मतलब इस क्रोध का नाश भी कर सकता है, शांत भी रह सकता है। तेम निवृत्ति सफल, निवृत्ति सफल। अब सारी बात किसके हाथ में आ गई? हमारे हाथ में आई कि नहीं आई? दूसरा कौन क्या करेगा बताओ? जिस क्षण हम कषाय के अधीन हो जाते हैं उसी क्षण हम मुक्त भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ ये, जो आध्यात्मिक दृष्टि वाला होता है वो होत आसवा परिसवा, इनमें क्या संदेह, मात्र दृष्टि की भूल। जिस समय उदय आ रहा है उसी समय उसकी निर्जरा कर रहा है, निसंबर कर रहा है। दृष्टि, अपना पुरुषार्थ उसने बदल दिया। क्रोध का उदय मोहनीय कर्म से आ रहा है, मान का उदय मोहनीय कर्म से आ रहा है, जैसे भी हो रहा है। अब उसमें वो अपना दर्शन ज्ञान चारित्र लगाता है, काम में लेता है,
तो उसकी निर्जरा हो रही है, वो आ करके जा रहा है। कैसे जाते हैं पता है? जैसे अग्नि में वो पतंगियां होती है ना, कीट पतंग, वो आ करके उसमें अपने आप गिरते हैं। उसी प्रकार ज्ञान ध्यान की अग्नि में ये कर्म आ करके अपने आप उनकी उदीर्णा हो करके गिरते जल जाते हैं, और चैतन्य ज्योति जलती रहती। तो उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, साधक ने कुछ नहीं किया, प्रवृत्ति की जगह निवृत्त हो गया। अभी बहुत सारे संकल्प विकल्प कर रहा था, किसी को गुस्सा आ रहा, आम करना किस पे लोग, फिर दूसरे प्रकार के भी विकल्प आते हैं, उसको गुस्सा मेरे को नहीं आना चाहिए, ऐसा ना, वो भी विकल्प, दोनों विकल्प में फंसा। एक तो पहले कर रहा था तो उसी के विकल्प में फंसा रहा था, उस रूप ही हो रहा था, और अब थोड़ा सा शुभ कर्म जागा ना, मंद कषाय, तो अब नहीं करने के विकल्प में फंसा। विकल्प में दोनों में फंसा हो, और दोनों नहीं होना चाहिए, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों होता है, धिक्कार धिक्कार धिक्कार, ऐसा यह होता है, हो नहीं होता ऐसी बात नहीं है, होना भी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, ये निवृत्ति का क्रम है इस प्रकार से। परंतु अगर उस समय कोई जीव जाग जाए तो उस करने के और नहीं करने दोनों के विकल्प से हट करके अगर वो स्वभाव की दृष्टि करे तो करने और नहीं करने दोनों से ऊपर उठ सकता है, और वहां वो अप्रत्याख्यान संबंधी जो भी लग रहे थे वो भी खत्म हो जाएंगे, अशुभ कर्म। प्रत्याख्यान संबंधी जो शुभ कर्म लग रहे थे वो भी खत्म हो जाएंगे, और केवल स्वभाव में स्थिर होने के लिए संबर निर्जरा शुद्ध भाव हो जाए। ये इन शॉर्टकट। आजकल वो कौन सा मार्ग चलता है? अक्रम मार्ग, इसका नाम अक्रम मार्ग है, ये अक्रम मार्ग है। कोई कोई जीव को मूल वस्तु पकड़ में आ जाती है, और जैसे वो मूल वस्तु पकड़ में आ जाती है उसके सब दुख दर्द तुरंत समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही अपना आत्मा चैतन्य भाव ऐसा है कि जिस समय हम उसके आश्रय में जाते हैं, जिस समय हम उसकी शरण में जाते हैं, उस समय वो अपने को शरण देता है और ठहरा देता है और शांत कर देता है, सब प्रकार से दुख दर्दों से मुक्त कर देता है। ऐसा अपना भगवान हम प्रयत्न करें जाने के लिए। दूसरी बहुत सारी इधर उधर की साधना करने से ठीक है कि उसकी शरण में जाए, सारा समाधान एक साथ मिल जाता है, तुरंत व्यक्ति ठहर जाता। बहुत कुछ याद नहीं है ना, बहुत कुछ अपने को, तो केवल 2 बातें याद रखना, मैं कौन हूं और मेरा काम क्या है। कौन सी 2 बातें? मैं कौन हूं और मेरा काम क्या, बस इतनी तो 2 बातें याद रहेगी कि नहीं रहेगी जीवन में। और इसको याद करके अपने को याद कर करके अपना काम करते जाना, कभी कहीं नहीं फंसेंगे अपन। परंतु दुर्बलता के कारण से नीचे की भूमिका में ये ज्ञान स्थिर नहीं रह पाता है, इसलिए हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं और मेरा काम क्या है। और जब जब भी हम इसको भूल जाते हैं, देखना फिर बाद में याद आता है ना, यार मुझे तो केवल यहां मेरा काम करना था, मैं कहां इस पचड़े में पड़ गया, दूसरे के पचड़े में। अपने तो बैठे बैठे अपना काम करना बस। और जैसे ही हम अपने कार्य करने की मर्यादा का उल्लंघन किया नहीं, कि हमको इन चोरों ने संसार पकड़ लेता है, बंधन में पड़ जाता है।
कृपाल देव ने विभाव को विशेष भाव के अर्थ में लिया एक जगह उपदेश नोंद में। विभाव मतलब विशेष भाव, आत्मा आगळ जईने करे, उसके जो नैसर्गिक भाव हैं उस नैसर्गिक भाव से भी आगे जाकर के कुछ करते हैं हम, तो उसको विभाव का। रमण महर्षि को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, उनके पास है ना प्रश्न करने वाले बहुत आते थे। ज्यादातर प्रश्न करने वाले मृत्यु होने के बाद हम किसी को देख सकते कि नहीं देख सकते हैं, ये भूत प्रेत होते कि नहीं होते हैं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, ये कोई तंत्र मंत्र होते कि नहीं होते हैं, ऐसे प्रश्न करते थे। उन्होंने एक बात कही, इतनी सुंदर लगी मेरे को, कि जगत के लोग रहस्य को जानना चाहते हैं, रहस्य में रुचि पड़ी हुई है, परंतु जो स्पष्ट है, जो सरल है, अत्यंत सुगम है, सर्वत्र जिसकी प्राप्ति है, उसको न सुनना चाहते, न जानना चाहते, न कोई इसके विषय में प्रश्न करता है। रहस्य की सब रुचि है। अभी मैं यहां देवलोक का वर्णन करूंगा, और वो 2 दिन बड़ी रुचि आई हो लोगों को। मेरे को बहुत से ने कहा, शू तमे स्वाध्याय लीधो छे। ये रुचि कहां पड़ी है हमारी? रहस्य में। क्या होगा, किस प्रकार होगा? उन्होंने कहा तुम इसको छोड़ो, अभी तुम क्या हो वो जानो, तुम यहीं के यहीं स्पष्ट हो, सरल हो, सुगम हो, यहीं के यहीं हो तुम, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी को जानने की जरूरत नहीं, और फिर तुम सब अपने आप सब जान लोगे। अच्छा, भविष्य का ज्ञान हो गया तो क्या कर लोगे? उल्टा उसके प्रति कुछ विकल्प जागेंगे। भूतकाल का ज्ञान हो गया तो क्या करोगे? उसके प्रति विकल्प जागेंगे। वर्तमान में तुम कौन हो इतना जानो, इतना पर्याप्त है बस। और वो कहते हैं कि इसमें किसी की रुचि नहीं है, जो एकदम स्पष्ट है, हाथ में रखे हुए आंवले की तरह है वो वस्तु, अभी ही अनुभव में आ रहा है, अभी भी ज्ञान में आ रहा है, अभी सब कुछ हो रहा है। रहस्य जानना है सबको। वो कहे आत्मा में कोई रहस्य ही नहीं है, बिना रहस्य का आत्मा। कृपाल देव कहे सत्य सरल छे, सहज छे, सुगम छे, सर्वत्र तेनी प्राप्ति। आत्मा में क्या रहस्य, बता, क्या रिद्धियां, क्या सिद्धियां? तुम सहज रहो, यही रिद्धि सिद्धि है। बाकी कोई रिद्धि नहीं और कोई सिद्धि, तो हम स्वाभाविक है, तुम स्वाभाविक हो जाओ बस। वो होने में जरा देर लगती है, इसी का यहां बात करेंगे। उसके लिए निवृत्ति का नाम ही यहां नैसर्गिकता है, कि जो अब तक शुभाशुभ भाव करते थे, विकार करते थे, उनसे दूर होकर के सहज शांत निराकुल साक्षी रूप होना, इसका नाम निवृत्ति है। तो बारंबार इसको याद करते रहें कि मैं कौन हूं और मेरा काम क्या है बस। हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा, हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा। हूँ तो आनंदनु 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 धाम, हूँ तो आनंदनु 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 धाम। हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू। देह मारो नथी, हूँ पण देह नो नथी, देह।
દેહ મારો નથી, હું પણ દેહનો નથી. અશરીરી આનંદ ઘન આત્મા, અશરીરી આનંદ, અશરીરી આનંદ ઘન આત્મા, અશરીરી આનંદ ઘન. હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા. દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન ગણિત, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન ગણિત. સદગુરુ પરમ કૃપાળુ ત્રિલોકના નાથ કી જય. સબ સંતન કી આનંદ ઘન. ઓ સૂત્ર સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ.